کہ ان کی سے ان کا مشورہ بھی شامل ہو کہ جی کس کو آرمی چیف لگایا جانا چاہیے. پولیس اور رینجرز کراچی میں جو ناکام ہو گئی ہیں, جو ڈکیتی جو ہے وہ کراچی والے نشانے پر ہیں, مطلب چوراہا ہو, گلی ہو, ہوٹلز ہوں, کہیں بھی بہت زیادہ جو ہے وارداتیں بڑھ گئی. اس میں کچھ کامنٹ کریں. دیکھیں, ایک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے, تو لوگوں میں بے چینی ضرور پیدا ہوتی ہے, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے جرائم پر قابو پائے اور ان کو ختم کرے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں, جتنی آبادی ان کی زیادہ ہوتی ہے, وہاں یہ اسٹریٹ کرائم جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ان میں کچھ زیادہ تیزی آ جاتی ہے, ان کی جو کیسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یقیناً پولیس اور دیگر ادارے اس پر بیٹھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی کی جاتی ہیں جس سے اس کرائم پہ کنٹرول ہو. اور مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ بھی جو تھوڑا سا رائز آیا ہے اسٹریٹ کرائم میں, اس کو کم کرنے کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے. حکومت سندھ بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے سوال جواب ان سے ضرور کرتی ہیں, اس پہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں, اور اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کمی آ جائے. لیکن یہ کہ اس میں شہریوں کو جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کا ہمیں احساس ہے. لیکن جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاید کچھ ایسے ایونٹ جان بوجھ کر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے شہریوں کے اندر کچھ اس قسم کی بے چینی پیدا ہو. ہمیں تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں شاید آپ کے سوال سے تو اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں ہے, تو پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی, بلوچستان میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی جو سیلاب اور بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں, اتنے بڑے کرائسس ہیں کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ بعض لوگوں کو نہیں ہو رہا. میں آپ کو خود اپنا بتاؤں کہ کراچی میں جب میں بیٹھا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ بہت نقصان ہوا ہے, لیکن جب میں میر پور خاص گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو اندازہ میں کراچی بیٹھ کے کر رہا تھا اس سے 100 گنا زیادہ صورتحال خراب تھی. جب آپ کے 3.5-4 کروڑ لوگ متاثر ہوں تو کسی حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر ریلیف فراہم کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے, ہیومنلی امپاسبل ہے. یہ نیشنل کرائسس ہیں, ایک قومی ایشو ہے, اس پر تمام لوگوں کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے, قومی جذبہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو نہ صرف ان کی مدد کریں بلکہ ان اندر امید پیدا کریں ان کے اندر کہ ہم تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن اس موقع پر بھی میں نے دیکھا کہ بعض ٹی وی چینلز کے جب اینکرز وہاں گئے تو جس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان سے, اس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارا ایم پی اے کہاں ہے, اب ایک ایم پی اے اگر پورا ضلع اس کا متاثر ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہر آدمی کے پاس جائے گا اور اس کی کوئی بیچارے کی وہ اس کی مدد کرے گا؟ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کم از کم صوبہ سندھ کی حد تک ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں, جتنے ایم این ایز ہیں, جتنے سینیٹرز ہیں, سب اپنے حلقوں میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں. لیکن ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. کہا گیا کہ جی بڑے لوگوں نے, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنی زمینوں سے پانی نکالا. جس علاقے میں گیا ہوں میرپور خاص میں, ہمارے سارے ایم پی ایز ایم این ایز کی زمینیں ڈوبی ہوئی تھیں, کسی نے پانی اپنی زمین سے نہیں نکالا, ان کو نقصان ہو رہا تھا. تو ہمیں اس موقع پر لوگوں کو اعتماد دینا چاہیے اداروں کے اوپر, حکومت کے اوپر, بجائے اس کے کہ ان کو ہم تنقید کا نشانہ بنیں, ان کا سہارا بنیں تاکہ لوگوں کی مدد کر سکیں. اگر اس موقع پر لوگوں پر تنقید ہوگی, حکومت پر تنقید ہوگی, وزراء پر تنقید ہوگی, ایم پی ایز ایم این ایس پر تنقید ہوگی, تو شاید لوگوں کے اندر جو مایوسی ہے وہ غصے میں تبدیل ہوگی, اور یہ غصہ جب پھیلے گا, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی, تو جو مدد ہم کر پا رہے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ بہت سیریس ایشو ہے. بدقسمتی سے جب سے یہ پی ٹی آئی وجود میں آئی ہے تب سے انہوں نے کبھی کسی ایشو پر قوم کو متفق ہونے ہی نہیں دیا. زلزلہ آیا, پوری قوم اتفاق کر گئی کیونکہ پی ٹی آئی نہیں تھی. 2010 اور 11 کا بارشیں اور سیلاب آئے, پوری قوم ایک ہو گئی اس لیے کہ پی ٹی آئی نہیں تھی. جب سے ان کو عروج ملا, اے پی ایس کا واقعہ ہوا, قوم ایک نہیں ہو سکی. اس کے بعد یہ بھی بارشیں ہوئی ہیں, قوم ایک نہیں ہو سکی. بھارت نے کشمیر میں ظلم ڈال دیا, قوم ایک نہیں ہو سکی, اس لیے کہ وہ ایک ہونے نہیں دیتے. اب اس موقع پر بھی اگر جھوٹی تصویریں لگا کر, جھوٹے اس طرح کے واقعات بنا کر آپ لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کریں گے تو یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں لوگوں کے اوپر
मदद की नीयत से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हम कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि जो लोग गुस्सा कर रहे हैं, जो मुतासिर हैं, उनका गुस्सा जायज़ है। जिस हालत में वो वहाँ बैठे हुए हैं, अगर उस हालत में हम और आप होते, हम भी वैसे ही होते, हम नाराज़गी का इज़हार कर रहे होते, गुस्सा कर रहे होते, लड़ रहे होते, वो बेचारे ठीक हैं। लेकिन हमें उनको बजाय उकसाने के उनको हौसला देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि स्केल कितना बड़ा है क्राइसिस का, तो ताकि शायद हम इस क्राइसिस से निकल सकें। ये बताएं कि सैलाब मुतासिर इलाकों में कराची में अभी जो है स्कूलों और कॉलेजों में हालत उनकी बुरी है, उनमें टेंट सिटी कायम किया जाए, मंदिर उनको नहीं कर रहा, उसके अलावा जो है वो ब्रेस्ट उनको नहीं कर रहा, वहाँ पर उनको निकाला जा रहा है ताकि आगे जो है अपने घरों तक आसानी चलेगी। देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल नंबर है हमारे पास, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी तादाद शायद 20,000 के लगभग है। बाकी वैसे और भी कई लोग होंगे जो अपने अजीज़ व अकारब के घरों में ठहरे हुए हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि उनकी तादाद कितनी है। लेकिन ये तासुर गलत है कि कोई उनको ओन नहीं कर रहा। जब फौरी तौर पर ये मुतासरीन आए तो इनको हुकूमत की जो भी बिल्डिंग्स अवेलेबल थी वहाँ पर इनको रखा गया, और जो पॉसिबल है वो उनकी खिदमत करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत भी कर रही है, फलाही इदारे भी कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं कराची शहर के जो अपने उनकी मदद उनके लोगों की कर रहे हैं। टेंट सिटी बनाने का बिल्कुल कल उसकी एक मीटिंग हुई थी, कैबिनेट ने कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। वो एक मीटिंग हुई और टेंट सिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, और कोशिश हमारी ये होगी कि एक मकाम पे या अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 जगहों पे एक बड़ी टेंट सिटीज़ बनाई जाएँ, जहाँ उनको जो भी पॉसिबल सहूलतें हो सकती हैं वो उनको फराम की जाएँ, हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों की तालीम जो मुतासर हो रही है वो दी जा सके, और जो स्कूल और कॉलेजेस में जहाँ ये बैठे हैं उनको खाली करा के वहाँ बच्चों की तालीम शुरू करा दी जाए। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची में बिल्कुल बारिशों से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कराची में वो सूरत हाल नहीं है जो सूबा सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में है। यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर उसको नुकसान पहुँचा है, और उसकी रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शंस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें बहुत ज़्यादा संजीदा है, और हमने किसी मौके पर भी ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन आगे हो जाने चाहिए। अगर पहले मरहले में भी जब 24 जुलाई को हो रहे थे तब भी हुआ, तो वो आपने देखा कि 24 जुलाई को ही इत्तफाक से बारिशें हो गई बड़ी शदीद। तो इलेक्शन कमीशन ने जो महकमा मौसमियात से राय ली थी उसको वो दुरुस्त साबित हुई। और फिर उसके बाद जब दोबारा अगस्त के महीने में होना था 28 को, वो जब आगे किए गए तो उसकी वजह ये थी कि कराची में, सिर्फ कराची डिवीज़न में जो इलेक्शन होने थे उसके लिए गालिबन कोई 13,000 या 16,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की इनको ज़रूरत थी जो कराची से बाहर से आनी थी। अब बाकी सिंध में जो सूरत हाल हो गई है बारिशों के बाद, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने उन्हें बता दिया कि जी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हम आपको किसी और ज़िले से पुलिस फोर्स निकाल कर कराची को दे सकें इलेक्शन के अरेंजमेंट्स के लिए। और फिर बाकी और भी बहुत तफसीली वजूहत इलेक्शन कमीशन ने वो बताई। तो इस बिना पर जो है वो इंतखाबात आगे हुए हैं। जैसे ही सूरत हाल इस काबिल हो कि इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। और हम तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, इसलिए कि हमारी तवक्को ये थी कि कराची में हमारा रिजल्ट पिछले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होगा। सईद साहब, मेरा एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, उसके तहत आपको ये जो सैलाब मुतासरीन बेघर हो गए हैं वहाँ, जिनकी ज़मीनें नहीं है वहाँ, इनको आप यहाँ कराची में आबाद करने का कोई प्रोग्राम पर गौर कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बताया, शायद आप लेट आए थे, कि जो मुतासरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, शायद लाखों में, या हो सकता है कि करोड़ से भी ज़्यादा हो। और ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि उनकी आबादगारी जो है वो फौरी तौर पर कर सके, उनको घर बना के दे। और ये भी मुमकिन नहीं है कि 1 करोड़ लोगों को आप जो है वो कराची शहर के अंदर आबाद कर दें, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत सिंध जो इमदाद कर सकती है, पहले तो ज़ाहिर है कि वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको टेंट्स फराहम करना चाहते हैं, उनको खाना देना चाहते हैं, उनके ज़मीनों पर जो पानी है उसको निकालना चाहते हैं,
ताकि वो इस पोजीशन में हो कि उनकी ज़मीनें आबाद हो सकें और जो लोग अपना घर बनाना दोबारा चाहते हैं उनको घर बनाने में उनकी मदद कर सकें। इसमें बैनुल अक़वामी इदारे भी हमारी मदद कर रहे हैं। और बाकी अगर कोई आदमी कहीं और रहना चाहता है तो हुकूमत के लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि हम उनको घर बना के दें। अब वो उसकी अपनी मर्ज़ी पर मुहित है कि कहाँ वो रहना चाहते हैं। यानी पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह बहुत काबिल आदमी हैं, अहल आदमी हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज से सूबे के मामलात को वो चला रहे हैं। और पहले भी क्राइसिस बड़े आए हैं सूबे में कुदरत की तरफ से, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो उनकी ताकत थी, उनके बस में जितना था, उन्होंने कोशिश की और उनको उन्होंने टैकल किया है। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त भी जो सैलाब और बारिश से लोग मुतासिर हैं, क्राइसिस बहुत बड़े, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसको हैंडल कर जाएंगे। जो असल इनका सवाल था, ये आपने तो एग्जैक्ट नंबर बता दिया, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ वाक़यात इस तरह के हमारे सामने आए हैं और जो भी वाक़यात सामने आए हैं उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। और एक वाक़या जो मुझे याद है कि क्लिफ्टन पर एक इमारत से ग़ालिबन 4 या 5 मज़दूर जो हैं वो वहाँ से गिरकर जहाँ बहक हुए थे और उनके जो बिल्डर्स थे उनके ख़िलाफ़ केस भी हुआ और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ के साथ उनका सेटलमेंट हुआ और उन्होंने कंपनसेशन उनकी फैमिलीज़ को दी है। अगर कोई एक आधा केस ऐसा आपके इल्म में है, जो शायद मेरे इल्म में ना हो, कि कोई ऐसा वाक़या हुआ और उनकी फैमिली को कंपनसेट नहीं किया गया हो, तो हमें बताइए, हम ज़रूर पे कर देंगे। थैंक यू जी। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त भी मेरी इस अपील से पहले भी जिसके बस में जितना है लोग कर रहे हैं और मैं तो इस बात को वेलकम करता हूँ। ख़ास तौर पे कराची शहर से जितनी इमदाद लोगों ने भेजी और भेज रहे हैं वो सब काबिल तारीफ़ है और मुझे उम्मीद है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको शायद ये बताने और कहने की ज़रूरत नहीं होती कि इस किस्म के क्राइसिस में किस तरह मदद की जाती है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं कह भी दूँगा। थैंक यू।